So today again we are going to do metals and their properties, right? कोई चीज metal होती है और उनके properties. Yesterday we had discussed. Where did that go now? Come on, workman. Yesterday we had discussed what are some metals. तो iron, gold, copper, tin, ये तो मैंने लिखे थे. Other than that, you also give answers: silver, bronze, steel, aluminium, and palladium. Right? Some metals. These are names of some metals. इनमें से काफी कोई हम लोग हर रोज यूज करते, जैसे आयरन है, राइट? सम पीपल यूज कॉपर टू ईट. वी यूज कॉपर इन वायर्स. वायर में सिर्फ कॉपर होता है. एल्यूमिनियम इज देयर, राइट? सिल्वर, गोल्ड, वी हैव सीन दीज. स्टील में, स्टील के बर्तन में हम खाते हैं. सो दीज आर कॉमन मेटल्स. ओके, substances like gold, iron, aluminium are called metals. Okay, metals are minerals found in the earth crust, right? Copper use होता सर. Metals are minerals found in the earth's crust. जो जमीन के earth's crust मतलब जमीन, right? ground, जो ground होता है, और वो जो ground है उसके अंदर हमें metal मिलते हैं, right? और उन लोग को कैसे निकालते हैं? So metals are found as minerals. वो मिनरल में पाए जाते हैं. और हाउ डू वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स? उनको अच्छे से प्रोसेस करेंगे, उनको धोएंगे, केमिकल से ट्रीटमेंट देंगे, तो हमें मेटल मिल सकते हैं. You will be learning more about this in future standards, right? Or of course YouTube तो सबके पास है. Everyone can just see. Oh my god, what happened? Wait. Yes, here we are. Okay, YouTube तो सबके पास है. Everyone may be able to what do you say? Would be able to see how metals are got, right? Mineral से metal कैसे बनते हैं. Okay, and of course metal कहाँ से मिलते हैं? Mine से. So हम लोग जमीन में बड़े बड़े खोदते हैं, you know, गुफाएं खोदते हैं, कुएं खोदते हैं. There's something like that called mine. Okay, हिंदी में उसको खदान बोलते हैं, and that's where you get metals from. All right. Continuing. One second, there's some problem today. Yes, properties of metals. Okay, so how do you know कि कोई चीज metal है या नहीं है? उनकी कुछ खूबियां होती है, metal की कुछ खासियत होती है. हम लोग ने ये टर्म पढ़ा है पहले, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी. इसका मतलब है कुछ खूबी या कुछ खासियत, कुछ खास बात. समथिंग स्पेशल अबाउट द मेटल, राइट? स्पेशल क्या है मेटल के बारे में? दोज आर इट्स प्रॉपर्टीज. सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? मैलिएबिलिटी, ductility, luster, sonority, thermal conductivity, and electrical conductivity. All right. Of course, पिछले you would all be like, भैया ये हमने देख लिया, but I would rather watch it again and try to see what malleability is. Malleable. In this module, you will learn that metals are malleable. For this activity, we need a small iron nail, a piece of gold, a pencil lead, a piece of thick aluminium wire, and a hammer. To start with, beat the iron nail with a hammer. Hit the nail hard. You have to do it carefully. Take care so that your hands do not get hurt. Now hit the aluminium wire hard. This time also, take care of your hands. What do you see? Change in the shape of nail and wire. You can see that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. When they are beaten harder, the iron nail and the aluminium wire take the shape of thin sheets or they are flattened. Now hit hard the gold piece and pencil lead with the hammer. Interestingly, you will find that gold pieces and pencil lead break into small pieces on beating. It is the property of the metals that they take the shape of a thin sheet on being hammered. This property of the metals is known as malleability. This is a characteristic property of metals. As you saw in the experiment, materials like gold and pencil lead do not show this property as they are not metals. In this module, you have learned that
Metals form thin sheets on hammering. The property of metals by which they can be beaten to form the flattest or thin sheets is called malleability. Right, of course हमने ये कल वीडियो देखा था. We had watched this video yesterday. What is malleability? जब हम लोग मेटल को, कोई भी मेटल को एकदम हथौड़े से जोर जोर से मारते हैं तो वो टूटता नहीं बल्कि पतली शीट बन जाती है, उसकी थिन शीट्स बन जाती है. ओके, सो हैमरिंग अ मेटल और हैमरिंग एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में हो सकता है बट ये मेटल में ज्यादा दिखाई देती है. ओके, ये प्रॉपर्टी. सो हैमरिंग अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स, राइट? By hammering is called a substance converted into thin sheets by hammering is called malleability, right? मतलब अगर कोई भी चीज को आप हैमर करो और वो थिन शीट्स बन जाए उसको हम बोलते हैं malleability. तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स आर malleable. इसका मतलब अगेन, मेटल को अगर आप हैमर करोगे, हथौड़े से मारोगे तो वो पतला चपटा हो जाएगा. इट विल बिकम लाइक थिन शीट. ओके, like a sheet of paper, right? It will become like that, patla ekdam. Moving on, second property is ductility. दूसरी special thing. Next special thing about metal is ductility, right? Property of a substance to be drawn into thin wires, okay, is called ductility. ये दूसरा ये है ना? Sorry, कुछ नहीं. ओके, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरी खास बात है मेटल की. दिस इज अदर स्पेशल थिंग अबाउट मेटल, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी कि मेटल जो है उसको अगर हम लोग जोर जोर से खींचेंगे, राइट, यहाँ एक एक एंड से खींचेंगे तो इट विल बिकम वायर लाइक, वो वायर जैसा बन जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. उस ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. डक्ट मतलब वायर. ये जो डक्ट वर्ड है ना, डक्ट मीन्स वायर या ट्यूब. ओके, सो व्हेन एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे क्ले है, राइट? क्ले मेटल नहीं है बट क्ले को भी अगर हम लोग जोर से खींचेंगे, ओके, दो साइड से, तो वो वायर जैसा बन जाएगा, है ना? तो एनी substance that can be drawn into wire by pulling is called ductility, is called ductile, right? And property, ये खास बात को बोलते हैं ductility. So we will say metals are ductile. Okay, moving on. नेक्स्ट वॉज लस्टर. हम लोग यहाँ पर आई थिंक अटक गए थे. वी नो दैट मेटल्स हैव अ शाइन, उनमें एक चमक होती है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, विच एवर मेटल इट इज, उसमें थोड़ी सी शाइन होती है, थोड़ी सी चमक होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड लस्टर. मेटल्स हैव अ शाइनी कलर, दिस इज कॉल्ड लस्टर, राइट? LUSTURE. जो चमक होती है मेटल्स में उसको हम बोलते हैं लस्टर, राइट? ऑफ कोर्स दूसरी चीजों में भी चमक होती है बट मेटल में ये सारी खासियत होती है. ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ओनली इन मेटल. सम अदर थिंग्स मे हैव सम प्रॉपर्टीज, दूसरी चीजों में थोड़ी थोड़ी होंगी बट मेटल्स में ऑलमोस्ट सारी या फिर सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, सारी मेटल्स शाइन करते लाइक दैट. ओके, राइट? इज मूविंग ऑन. We saw luster. Now this is a small activity that I want you to do. जल्दी से अपने घर में एक मेटल का ग्लास लो, कोई भी ग्लास लो जो मेटल का बना है, ओके, या फिर कुकर लो, ओके. उसको take a, see here the entire activity. Drop a metal glass at home or hit a cooker. मेटल का ग्लास लो, उसको जमीन पे गिराओ या फिर कुकर को मारो, ठीक है? और यही चीज आप करो कोई बुक के साथ. फिर आप एक बुक लो और उसको इधर जमीन पे गिराओ या उसको मारो. ओके, व्हाट डू यू सी और हियर? आप क्या देखते हो, क्या होता है या क्या सुनाई देता है? लोग ने एकदम ढंग का एक्सप्लेनेशन दिया. एवरीवन हैज स्पोकन रियली वेल. यस, सो ऑफ कोर्स हमने अगर मेटल का ग्लास गिराया या फेंका, ओके, और या फिर कुकर को मारा तो वी गॉट अ रिंगिंग साउंड. टंग करके आवाज जो आती है उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड, राइट? बजने वाली आवाज. व्हेन वी डिड इट विद अ बुक, किताब के साथ किया तब वो नहीं हुआ. ओके, आदिल ऑल्सो मेंशन कि जब किताब गिराई वो वहीं पर पड़ी रही बट जो ग्लास गिराया वो इधर उधर जाने लग गया, राइट? सो एंड जानवी ऑल्सो मेड अस लिसन टू द साउंड ऑफ द ग्लास. जानवी ने साउंड भी हमें सुनाया कि टंग करके जो आवाज आता है.
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये अगली खास बात है मेटल की, ओके, सोनोरिटी, उसको बोलते हैं सोनोरिटी. सोनोरिटी इज द रिंगिंग साउंड दैट मेटल्स मेक. सो मेटल में ये खास बात है कि अगर आप उसको फेंकते हो, ओके, या कहीं पर डालते हो तो उसमें से टंग करके जो आवाज आता है उसको बोलते हैं सोनोरिटी, उसको बोलते हैं सोनोरिटी. कोई मेरे को बोलेगा भैया बट ये हमने बुक और ग्लास के साथ किया, तो मैं आप लोग को बता सकता हूं, अगर आप लोग अगर आप पेपर का ग्लास लोगे और उसको भी फेंकोगे तब भी उसमें से आवाज नहीं आएगी, राइट. ये जो सोनोरिटी है वो मेटल की खूबियत है. इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि उसमें से वो रिंगिंग साउंड आता है. वो जो हम टंग करके जो आवाज बोलते हैं उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड, ओके. एंड रिंगिंग साउंड is what metals make and this is called sonority. उसको क्या बोलते हैं? Sonority. Sonority. All right. This is sonority. This is the fourth property. Okay. ये आप सबने देखा खुद घर पे करके. Okay. Moving on. Now I want you to ask your parents. ओके, टेक लाइक अ मिनट, 1 मिनट ले लो, अपने पेरेंट्स को पूछो कि हम लोग जो स्टील के बर्तन है ना उसको ही क्यों गैस स्टोव पे डालते, क्यों कांच के बर्तन को नहीं या प्लास्टिक के बर्तन को नहीं. चाहे अपने पेरेंट्स से पूछ लो या समथिंग, ओके, बट गिव मी अ गुड आंसर फॉर दिस. हम लोग क्यों सिर्फ स्टील के बर्तन डालते, प्लास्टिक या ग्लास के नहीं गैस पे? ऑलराइट, दैट metals conduct heat, okay. Thermal conductivity, thermal मतलब heat, thermal मतलब heat से लेना देना है, and conductivity मतलब उसके through flow होना है. Metals show thermal conductivity, which means इसका मतलब they allow heat to flow through them. वो उनके थ्रू हीट फ्लो होने देते हैं, ओके, उनके थ्रू हीट फ्लो होने देते हैं. ऐसा नहीं कि ग्लास की तरह फूट जाएंगे, है ना, कि प्लास्टिक, ऑफ कोर्स मेटल्स भी पिघल जाते हैं, मेटल भी पिघलते हैं, बट ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की तरह एक जगह से ही पिघलेगा दूसरे जगह पर नहीं. मेटल में खास बात यह है कि वो हीट कंडक्ट करते हैं, ओके. अगर आप मेटल को लेफ्ट पार्ट गरम करोगे थोड़े टाइम के बाद राइट पार्ट भी उसका गरम हो जाएगा, ओके. इसका मतलब हीट लेफ्ट पार्ट में से राइट पार्ट में जा रही है, ओके. सो thermal conductivity is a property of metals, okay, which means they allow heat to flow through them. उनके अंदर से गर्मी फ्लो होती है, हीट है जो फ्लो होती है. हीटिंग वन पार्ट ऑफ द मेटल हीट्स द एंटायर मेटल. अगर आप तपेले को या कटोरी को गैस पे रखते हो गर्म करने के लिए तो नीचे का पार्ट गर्म तो होगा ही, बट ऊपर का पार्ट भी गर्म होते जाएगा. ऑलराइट, यस आदिल एंड जानवी, आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ. Right, and now I'm going to continue. Before I continue, I want to ask, has everyone seen a electrical wire? सब लोग ने electrical wire देखा है, I hope. Electrical wire में बीच में क्या होता है और उसके आजू बाजू क्या होता है? Can someone tell me? कोई बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में बीच में क्या होता है और आजू बाजू क्या होता है? यस अंजर, प्लीज. बीच में मेटल होता है, आजू बाजू प्लास्टिक होता है. हाँ, क्यों होता है ऐसा अंजर? क्योंकि अगर मेटल नहीं हटाएंगे तो करंट लग जाएगा. हाँ, अगर मेटल को छुएंगे तो करंट लग जाएगा, और अगर प्लास्टिक को छुएंगे तो करंट लगेगा? नो. नो. ओके, गुड. क्योंकि उसमें से करंट जाता है, उसमें करंट जाता है, मेटल में करंट जाता है? मेटल में करंट जाता है, प्लास्टिक में नहीं. वेरी गुड, प्लास्टिक में नहीं जाता, ओके. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब अगर उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, अगर उसको हमने वायर की तरह यूज किया तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ओके. प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ओके. सो metals conduct electricity, they let electricity flow through them. आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बहती है मेटल में, ओके. अगर आप यही चीज कोई वुड के साथ करोगे, if you do the same thing with wood, okay, I'm going to show you a small video and I will show you what happens अगर आप वुड के साथ यही करते हो.
भैया अभी वाला वापस समझाना प्लीज। हाँ, आई विल शो यू, 1 सेकेंड। अगर आप वुड में इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, ओके, अगर वुड, लकड़ी को वायर की तरह यूज कर रहे हैं ये लोग, why is it not working? भैया चालू क्यों नहीं हो रहा? Because मेरा इंटरनेट स्लो है, आई थिंक दैट्स व्हाई। सो इन लोग ने क्या किया है, ये जो लकड़ी है उसके आजू बाजू पर उन्होंने वायर, मतलब लकड़ी को वायर की तरह यूज किया है यहाँ पर, ओके। तो देखो क्या होता है। भैया बड़ा करो ना। नो, दिस इज अबाउट इट। इतना ही देखना है आपको कि लकड़ी को अगर वायर की तरह यूज कर रहे तो क्या हो रहा है, ओके। वो अगर लकड़ी को वायर की तरह यूज कर रहे तो वी ऑल सॉ कि आप सबने देखा कि वो जलने लगी है ना, लकड़ी जलने लगी। हाउएवर यहाँ पर वायर को हम लोग ऐसे लगा देते हैं प्लग से, तो क्या वायर जलने लगता है? नहीं जलता, नहीं जलता, राइट। लकड़ी को लगा दिया दो उसके बीच में तो जलने लग गई। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जो मेटल है उनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है, ओके। जो इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है मेटल में, ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है, ओके। आई एम गोइंग टू just quickly go over the homework and then you can ask as many questions as you want. जितने सवाल पूछना उतना पूछ लेना, पहले होमवर्क कर देते हैं, ठीक है पहले। All right, so moving on, 1 second. So today's homework is write one. Today, yeah, I will take your doubts. Write one object in your house that is made of a metal. कोई भी एक चीज लो अपने घर में और उसका नाम लिखो जो मेटल से बनी हुई है, ओके। Write one object, one thing in your house that is made out of metal, okay. This is your homework.